Hard work and talent will surely give you success, but if the strategy is smart, your life will be very easy. Hello everyone, I am Dr. Ratak Agarwal here. Today we are going to discuss about the subject-wise strategy for NEET PG 2025 Part 2. In our Part 1, we have already talked about how to approach physiology, anatomy and biochemistry. What are the ideal sources for all of these subjects? Today we will be discussing about the second year subjects and third year subjects कि उनको कैसे approach करना है. What are the ideal sources for each of these subjects and how we should move ahead in these subjects. So what are the objectives of this video? Firstly, we will be discussing about the source, what is the ideal source and how you should approach that particular source. Okay. Then another thing is what are the additional sources along with the main source जो कि तुम्हें साथ में पढ़ना है. Those are an add-ons जो कि optional है. You can skip them also, but it's recommended कि तुम उनको भी साथ में करो. So that will give you a holistic approach कि पूरे subject को कैसे हमें आगे बढ़ना है उसको लेके. Other than that, we are discussing here the key mistakes जो कि students usually commit करते हैं and how you can avoid those mistakes. So once again, I would like to remind कि ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े हैं एंड दे आर एमिंग फॉर दिस ईयर नीट पीजी एग्जामिनेशन. एंड एनी स्टूडेंट जिसने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है किसी एग्जिस्टिंग सोर्स से, आई जस्ट स्ट्रांगली रिकमेंड देम कि वो अपना एग्जिस्टिंग सोर्स चेंज ना करें. जिन्होंने जहां से पढ़ा है दैट्स मोर देन सफिशिएंट, दैट्स ऑल गुड. So you can continue with that particular subject and that particular source only. Okay, don't switch at this moment. That would be harmful for you. अगर नहीं पढ़ा है, then this is the ideal source. In this limited amount of time, you can easily cover these resources and get your dream branch, dream college in NEET PG 2025. तो सबसे पहले let's talk about pharmacology. Pharmacology, we all know Dr. Gobind Rai Garg sir, GRG sir, Goga sir, whatever you can call him. He is the legend. He is the OG for pharmacology. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि उनके रैपिड रिवीजन नोट्स को देखना है. करंटली ही टीचेस एट सेरिबेलम जो कि 10 घंटे के उनके रैपिड रिवीजन नोट्स हैं. अब उनके रैपिड रिवीजन नोट्स की सबसे खास बात क्या है कि ही गिव्स यू द कांसेप्ट, अप्रोच द सब्जेक्ट बेसिकली, और साथ में निमोनिक्स देंगे. और वो निमोनिक्स ऐसे हैं कि अगर तुमसे कोई सपने में भी आकर पूछेगा कि वो निमोनिक बताओ, आधी नींद में भी पूछेगा कि इस निमोनिक का मतलब क्या है या फिर इस चीज के लिए निमोनिक क्या है, तो तुम्हें याद रहेगा. सो ही इज दैट फ्रेंडली, his mnemonics are that good, so you can blindly trust on him. और उसके अलावा तुम्हें और कोई सोर्स करने की जरूरत भी नहीं है. there is no additional source which is required along with those GRGs and notes. just follow him. और साथ में उन्होंने रैपिड रिवीजन में PYQs भी कवर कर रखे हैं, so that will cater everything for you. that will be a platter for you. just you have to eat it. Okay, so that's how you have to approach pharmacology. Next comes pathology. So for pathology you have to do Dr. Preeti ma'am's rapid revision notes. Currently she teaches at Prep Ladder, as we all know. So उनके साथ में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि she covers not only just pathology but many things which you will study in medicine. So जब तुम मेडिसिन में उन चीजों को पढ़ने जाओगे तो वो एक रिवीजन होगा. So all of those things she cover in pathology itself. And one more thing which I likes about her is कि उनके जो निमोनिक्स होते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं पैथोलॉजी याद करने की, वो उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में ही होती है. सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी अदर ट्रिक कि ट्रिक को याद रखने के लिए कोई और निमोनिक, वो चीज नहीं होगा. तो इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड एग्जाम में जब तुम जाओगे इट्स ऑलवेज सेड कि उनकी ना तुम्हें आवाज सुनाई देगी कि मैम ने इस क्वेश्चन के लिए आंसर बोला था एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो इट्स अ वेरी ब्लाइंड थिंग. जस्ट गो विद डॉक्टर प्रीति मैम pathology and it's your life will be sorted. Currently she teaches at Prep Ladder and the rapid revision duration is of around 20 hours. तो ये 20 घंटे हैं, बट इस 20 घंटे में पूरी पैथोलॉजी कवर होगी एंड काफी चंक मेडिसिन का भी कवर होगा. सो यू डेफिनेटली हैव टू वॉच दिस रैपिड रिवीजन वीडियो अगर पहले कहीं और से नहीं देखा. आई एम अगेन गिविंग अ डिस्क्लेमर कि पहले अगर कहीं और से सब्जेक्ट करे हुए हैं तो डोंट डाइव इनटू द फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग. फोमो में नहीं जाना है कि ये मेरे को भी करना है. अगर कहीं से करा हुआ है इट्स वेल एंड गुड, जस्ट रिवाइज दैट. अगर नहीं करा है अभी करने का है सीन कि भाई करना है मेरे को, अभी ये सब्जेक्ट रह गया है मेरा, तो ये आइडियल सोर्स है, तुम कर सकते हो इसको. अलॉन्ग विद दैट अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को अभी थोड़ा सा और पैथोलॉजी पढ़ना है या फिर मेरे को अभी मेरे पास टाइम है, अलोकेटेड डेज में सपोज पैथोलॉजी के लिए 5 थे बट मैंने ये सब 3 दिन में खत्म कर दिया, तो अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम है, तो मैं अब क्या करूं. सो अलॉन्ग विद दैट यू कैन डू 2 वीडियोस आई वुड रिकमेंड. पहली इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी बाय डॉक्टर ज़ैनब मैम इन BTR. सो दैट्स 3-4 घंटे का वीडियो है वो. उसमें तुम्हारी पूरी पैथोलॉजी एक होलिस्टिक तरीके से बहुत कंसाइज मैनर में पूरी रिवाइज हो जाएगी. जितने भी इमेजेस हैं, स्लाइड्स हैं, वो सब मैम ने वहां पर रिवाइज कराई हुई है. तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो. Along with that, recently मैम took one more video for the Robbins. तो Robbins में जो टेबल्स हैं जो प्रोबेबल न्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसकी एक टेबल है और जो स्लाइड्स वगैरह जो मैम को इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो मैम ने एक वीडियो बनाई है उसके लिए. यू कैन इजीली गो एंड वॉच दैट वीडियो. वो भी 3-4 घंटे की रहेगी. तो दीज 2 वीडियोस आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हारे पास टाइम है अपने एग्जिस्टिंग चीज रैपिड रिवीजन खत्म करने के बाद, PYQ सॉल्व करने के बाद, then you can definitely watch these 2 videos. This will help you a lot. Okay,
तो रिवाइज बहुत जल्दी हो जाएगा उससे. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू टेलीग्राम कि टेलीग्राम पे हमें कौन कौन से चैनल ज्वाइन करना है. आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट थिंग अलोंग साइड दिस वीडियो. तो फॉर पैथोलॉजी यू जस्ट नीड टू फॉलो प्रीति मैम्स पैथोलॉजी ग्रुप. तो उसमें क्या होगा कि मैम अपलोड्स अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे. तो पहले वो मॉर्निंग में क्वेश्चन डालती है मैम. आफ्टर दैट यू हैव द टाइम टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स आल्सो, बट इट्स रिकमेंडेड कि तुम उसी दिन सॉल्व करो. और शाम को मैम उसके ऑडियो एक्सप्लेनेशन डालते हैं. तो जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो समझ नहीं आए, जस्ट गो थ्रू दोस ऑडियो एक्सप्लेनेशंस एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. पैथोलॉजी विल बी वेरी सॉर्टेड अगर तुम ये इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी तरीके से फॉलो करोगे एंड यू विल फील इट वेरी इजी. ओके, so that's how you have to approach pathology. Next comes microbiology. For microbiology, I was in a bit dilemma that which faculty to put here. So all are good, but I would say Dr. Nasir sir, you might not have heard his name, but I would definitely recommend you कि उनके lectures देखो. Even if you have gone through his T&D, तो 4 घंटे में उनका वो tabulated structure पूरी microbiology का इतना तगड़ा है कि you would feel कि 4 घंटे में पूरी microbiology खत्म हो गई है. So that's how that's good he is. Okay, so for microbiology, Dr. Nasir currently he teaches at DBMCI 1. So उनके जो rapid revision videos हैं, उसकी duration है around 13 hours है. So you can definitely and easily watch those videos. And one more thing is कि उन्होंने पूरी चीजें ना एक system wise discuss की हुई है. So if you are seeing a patient of pneumonia, you have a mental orientation कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से organisms हैं जो इसलिए करवा सकते हैं. So एक approach बन जाता है. So that's how you have to approach microbiology, and that's the most easy way. उनके लिए उनकी चीजें, उनके जो लेक्चर्स हैं उसको याद करने के लिए, उनके नोट्स को याद करने के लिए, यू डोंट नीड एनी ट्रिक. वो टेबुलेटेड एक माइंड मैप होता है जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है. इट्स लाइक दैट ओनली. ओके, एंड व्हाट आई फील इज कि हमेशा हमें ना छोड़ना आना चाहिए. दैट आई हैव सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि यू शुड हैव द जॉय ऑफ मिसिंग आउट, नॉट द फोमो ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच थिंग्स. सो फॉर माइक्रोबायोलॉजी there are 2 additional sources. If you want you can just go through it. अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास DBM से 1 का एक्सेस नहीं है या मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ कहीं से भी, just go through BTR. Zanab ma'am has also covered everything of microbiology beautifully in BTR concise manner में, तो तुम वहां से भी कर सकते हो. Other than that, there are 2 Telegram channels which I would recommend you to join for microbiology per se. पहला प्रीति मैम का चैनल है जो कि पैथोलॉजी वाला ही है. दैट सेम चैनल, वहां पर मैम माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चंस डालती हैं. सेम अप्रोच की सुबह को डालते हैं मैम क्वेश्चंस, देन यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. रात को मैम ऑडियो एक्सप्लेनेशन डालती हैं. दैट्स हाउ यू कैन गो विद माइक्रोबायोलॉजी. एंड वन मोर चैनल, डॉक्टर नसीर का खुद का चैनल है जहां पर he also posts some questions. He also discusses some concepts there. And अगर तुम्हें कोई भी डाउट है किसी भी टाइम, तो you can post your question or query there. He usually answers within a day or so max. So that's how these 2 channels are very important for microbiology if you want to join any channel Telegram. Then next comes forensic medicine. So for forensic medicine, you can either do BTR or Dr. Vishwajit sir's DBMCI 1 lectures. Both are equally good. BTR में मैम ने पूरी forensic को लगभग 3-4 घंटे में कंसाइज किया हुआ है. And those points are there कि अगर ये condition है तो what you have to think, what you have to do, and पूरी poisoning, all images, everything beautifully ma'am has covered. And in DBMCI 1, Dr. Vishwajit has also discussed whole of the forensic medicine very conceptually and beautifully. So दोनों में से जो भी तुम्हारे पास access है, जो भी तुम करना चाहते हो, you can do either of them. कोई एक कर लेना, that's more than sufficient. And for forensic like subjects, I would say this is a subject which is a छोटा पैकेट and बड़ा धमाका. Like in this subject you get around 10 questions, और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर तुमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, you can answer all of those questions. 100% स्ट्राइक रेट होता है इन सब्जेक्ट्स का. So for small subjects like forensic, I would always say कि अगर इन सब्जेक्ट्स में तुमने जिन सब्जेक्ट में 100% स्कोर करने का एक चांस होता है, अगर वहां पर you are scoring good, then you are definitely boosting very much in your rank. Okay, so don't miss out on these small subjects thinking कि मैं तो medicine, pathology, microbiology पढ़ूंगा and forensic देखा जाएगा. नहीं, forensic is equally important. अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा गलत होता है, you are losing on 5 marks. So in forensic medicine, this is how you have to approach it. Along with that, I would recommend you to join one channel here for forensic medicine, Dr. Vishwajit sir's own channel. वहां पर वो जो भी नए अपडेट्स होते हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी चीजें तुम्हें एग्जाम के पहले याद करनी ही करनी होती है, सिंगल लेटेस्ट ट्रेंड इन द एग्जाम सर पोस्ट करते हैं वहां पे सब कुछ. और तुम्हारा अगर कोई डाउट है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट आल्सो. तो ये चैनल तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो फॉर फोरेंसिक मेडिसिन. अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम्हें पूरी फोरेंसिक में कुछ भी याद नहीं हो रहा है, just go on YouTube and search Nickmonics by Dr. Nikita ma'am and put that topic. I would say कि 99% chances है कि वो टॉपिक मैम ने वहाँ पे कवर कर रखा होगा YouTube पे, the tips and tricks to do that topic. So that's a very added advantage कि अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, just go on YouTube, search Nikita ma'am's Nickmonics on that particular topic and most chances है कि वो वहाँ पर होगा. So that's how you have to approach पूरी forensic medicine. And that would be like कि थोड़ा easy हो जाएंगी सब चीजें कि एक organized manner में तुम्हें याद भी रखना है. और ultimately चीज यही है कि कितना आता है वो मैटर नहीं करता, कितना याद है वो मैटर करता है.
You have to recall the things and put there in your exam paper. So that's how you have to approach things. So we are done with second year subjects. Now let's approach to third year subjects. For ENT, definitely if you have time, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को ENT नहीं आती है, पहले से मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे याद नहीं है कुछ भी, so I would say कि go with डॉक्टर राजीव धवन. उनकी 30 घंटे के लेक्चर्स हैं. तो अगर तुम्हें लगता है कि इतना टाइम मेरे पास है कि मैं 30 घंटे के लेक्चर्स अभी देख लूं, which I think is a bit doubtful कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, so you can firstly watch his lectures on Doc Tutorials app, वो जो कि 30 घंटे उनके रैपिड रिवीजन वीडियोस वहां पर लगभग 5 घंटे के, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट. सो अगर टाइम लगता है तुम्हें कि मेरे पास टाइम है तो 30 घंटे मैं दे सकता हूँ. जस्ट गो विद डॉक्टर राजीव धवन ENT लेक्चर्स ऑन Doc Tutorials app, और वो रिवाइज करने के लिए तुम्हें फिर बाद में 2-3 घंटे चाहिए एट मैक्स. तो दैट्स गुड, इज नॉट सार. बट अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास उतने घंटे नहीं है, आई वांट टू फिनिश द सब्जेक्ट अर्ली, और मेरे पास सोर्स का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, मैं आई कुड नॉट अरेंज डॉक ट्यूटोरियल्स ऐप नाउ फॉर दैट वन सब्जेक्ट, सो जस्ट गो ऑन मैरो रैपिड रिवीजन नोट्स. डॉक्टर मनीषा मैम हैज कवर्ड ENT also nicely, very nicely. तो 15 घंटे के उनके लेक्चर्स हैं, you can watch that would be like covering everything. And along with that, one more additional source I would like to add here is डॉक्टर मनीषा मैम का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर she post around 10 to 15 questions per day. तो वो क्वेश्चन जो होता है वो पूरे क्लिनिकल विनियट्स होते हैं. फॉर एवरी क्वेश्चन शी पुट्स देयर, तो तुम्हारा एक पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बैक ऑफ द माइंड रिवाइज हो जाएगा. एंड इफ यू आर गिविंग दैट आंसर रॉन्ग, तो मैम शाम को उसके एक्सप्लेनेशन भी देती है सबके, सो यू कैन जस्ट रीड दैट, तुम्हारा वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. एंड सपोज कि तुमने ENT को 2 महीने पहले पढ़ा है, बट यू आर रेगुलरली अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस देयर, तो 2 महीने बाद भी तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यू हैव फॉरगॉटन ENT. ओके, सो वो पूरा का पूरा ENT तुम्हारा बार बार रिवाइज होता रहेगा. सो इट्स रिकमेंडेड ऑलवेज कि हमें जो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनको पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में रिवाइज करना. इफ एनीवन इज रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर रेगुलरली स्पेस्ड इंटरवल की 2 महीने बाद रिवाइज करूंगा, तो वो 2 महीने का पीरियड काफी लंबा हो जाएगा. बट इफ यू आर हैविंग एनीथिंग कि तुम्हारा वो 2 महीने के गैप पीरियड में भी वो सब्जेक्ट रिवाइज होता रहेगा, सो डेफिनेटली यू वुड बी हैविंग एन एज, मैसिव एज. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच ENT. ईदर ऑफ द टू सोर्सेज आई हैव मेंशन्ड, बोथ ऑफ देम यू कैन फॉलो, बोथ आर इक्वली गुड. ओके, नेक्स्ट कम फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी. ऑप्थेल्मोलॉजी आई वुड अगेन से कि डॉक्टर उत्सव सर एंड डॉक्टर सौरभ सर बोथ आर ट्रेमेंडसली गुड. उन दोनों में से किसी के भी लेक्चर्स रैपिड रिवीजन नोट्स तुम देख सकते हो. उत्सव सर इज करंटली एट मैरो एंड सौरभ सर इज एट डैम्स. सौरभ सर के आई कुड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स विच जितने उनकी वीडियोज हैं, बट फॉर उत्सव सर इट्स 8 hours, so you can watch either of them, and both of them have covered ophthalmology very nicely. Along with that, if you want an additional source, BTR is one of those sources जहाँ पर मैम has covered everything very beautifully, conceptually, जहाँ पर सारी images मैम ने cover कर रखी हैं, so you can watch BTR as well, additional to these basic rapid revision sources. Okay, so these are the sources for ophthalmology. Along with that, I would say कि join Dr. Saurabh sir's Telegram channel, जहाँ पर you would say कि you would get all the questions, important questions. He take quizzes, random quizzes as well. और उसके साथ में तुम्हें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डिस्कस इट विद सर. सर इज वेरी काइंड टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस एज वेल. सो दैट्स अ टेलीग्राम चैनल आई वुड रिकमेंड फ्रॉम माय साइड. ओके, लास्टली कम्स PSM. PSM वी फील लाइक अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. इसमें किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता, यू वुड फील कि क्या सब्जेक्ट है ये. बट आई वुड से कि 10 से 15 क्वेश्चन ऑन एवरी एग्जामिनेशन यू गेट फ्रॉम PSM. अगर एक बार राजीव शेट्टी सर से तुमने पढ़ा है, द एग्जाम्पल्स ही यूजेस, द एनालॉजीज ही यूजेस, definitely the subject becomes very interesting. So it's recommended कि उनके तुम DBM से 1 से rapid revision notes कर लो. लगभग 7-8 घंटे के वो videos हैं, just go through them. And additional to that, just join Dr. Kashish sir's Telegram channel. And I would say that's the best channel an aspirant can get in this time. Okay, so उस चैनल में तुम्हें PSM के साथ साथ में, complete PSM के साथ साथ में तुम्हें daily life को कैसे approach करना है हमें, how you can be a better person in your life, how you can be more productive, and how that constant doubt about the examination, that channel will help you to cater all of these self-doubt things as well. So that's the best channel you could join in your journey, I would say. So that's definitely recommended to you. So that's how you should approach all of these 7 subjects. We have covered 3 in our first video. In the next coming video, I would be covering all of the final year subjects. So with this, I would like to end my video. And this is the slide I always see whenever I am in doubt, ki rise strong and shine bright. I know from we all have been through that side कि जहाँ पर हर दिन becomes very tough. Everything which you are doing creates a self doubt कि is it worth it? Is it enough to do to get my dream branch, dream college? Your health might not be helping you at this point of time, and there are several doubts. घर से pressure होगा, family से pressure है, and there are several things which might be going through in your mind currently. But I would say that when you cross this line, everything is worth it. When you get your dream branch, when you get your dream college, everything feels wonderful. Every sacrifice which you are doing right now,
every pain which you are getting right now, everything is worth it. So with this, I would like to end my video. And if you have any query, any doubt, anything which you want me to put forward on your behalf, so just let me know in the comment section. I would be more than happy to help you. So stay consistent, stay positive, and thank you.